Good evening, students. Now, just we are going for our new topic, the lecture number 6, the reflection and refraction of the lights. Okay. Um, it will discuss what you have to learn in this topic. Here, we have to discuss about the numerical examples only, based on the mirror, mirror 2. Okay. This topic we have to discuss mirror 2, and few examples are there. Same for the topic. Just what we require, just we require the mirror formula. Let's we go now for to solve that examples. First one. Now, given an object of 5 centimeter placed at a distance of 20 centimeter in front of the concave mirror, and radius of curvature is 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. है ना, तो वो आपको निकालना है ना. तो कैसा करेंगे आप इसमें? तो हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला है हमेशा के लिए, जो जो दिया है. to take first data. Okay, what they given to us? The object 5 centimeter placed at a distance of, that is the height of object is given. Height of object is how much given? 5. Distance from the convex mirror, that is distance given, means u is given 20. What will be the sign there? Minus. And convex mirror is given. Of radius of curvature given 30. R of convex mirror is 30 centimeter. It will be positive or negative? It will be positive. That is focal length is also positive. That is R by 2. That is 15 centimeter. Then find A. Then find position, nature and size. Okay. We'll come to know the position. That is, we have to find where it will be the objects. The nature, how the object will be there, and what is the size. We have to find here that is image of height of the image you have to find, is as well as V you have to find. Understood the question? Question is clear? Then simply just you substitute in the formula 1 upon U plus 1 upon V equals to 1 upon F. If you are solving these equations, then you will get the answers. It is need to solve, or you can able to solve these questions. Okay, good. Then we'll go for the next one. Same. And size of the objects of 7 centimeter is placed at the means height given. Size of object means what is given this? The height of object given 7 at a place at 27 centimeter in front of concave mirror. Now the object is given in front of the concave mirror. That is U is given how much? 27 centimeter. Of focal length 18. Means concave mirror means focal length will be minus. Very good. And it should be the screen. The distance of mirror should be the screen, be the place where will be the image. So that sharp focus image can be obtained. Find the size, and that is you have to find the height of object also, height of image also. Height of image also you have to find. And the nature of the image also. Nature as well as how it will be. The same formula you have to use again. Okay, this will be solved again fully. Now listen. First one, you have to 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. Okay, what they given to us. Now here, U how much given? Minus 27. U is always negative. Keep in mind. U is always negative. Then 1 upon V, or we can write 1 upon minus 27 plus 1 upon V we have to find, and 1 upon focus how much? Minus 18. Correct? Then we will shift that 27 on that side. That is 1 upon V equals to 1 upon 18 minus and plus 1 upon 27. Correct? It is a multiple of 9. Then what is LCM? 50? 54. 18 3s are 54. Then minus 3 we can write. And 27 2s are 54. Then 1 upon V minus 1 upon 54, that is V equals to how much? Minus 54. Then your object is coming on the same directions. Means the object will be the real one. We have to find the nature also. That is, object will be, the image will be real. Enlarge. Very good. The object will be real one. And how to enlarge? We have to find that one also, because the for magnification you have to find. What is the formula of magnification? Height of the object
height of image by height of the object, or other formula minus v by u. Okay, here height, how the image you have to find, and height of object is given how much? 7. The object distance we need to find here, v is how much? Minus minus plus 54, and u is given 27, correct? Minus 27. Then we will simplify here. It is multiple of 9. Huh? Okay, directly you can 27 on the 27, 27 to the minus 2. Then h equals to 7 into 2, that is h of, that is 14. There is minus 14 means indicates that the image will be on inverted. Got it? The image will be the inverted. And if suppose such questions are coming in your exam also, and if you are basically you do one thing, listen, आप क्या करो, बेसिकली क्या करो, जस्ट यू ड्रॉ द रफ डायग्राम, रफ स्केच निकालते हो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है मोस्टली. अभी क्या क्या दे रहा है आपको, मोस्टली क्या करना है, देखो इसमें ऑब्जेक्ट दे रहा है, इनफ्रंट सिंपल निकालो, यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ऐसे निकाल देना है, एक रफली, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल निकाल देने का है. क्या करे हो, यहाँ पे 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर्स और फोकल लेंथ है 18. फोकल लेंथ कितना है उसका? 18 है. 18 टू द कितना आता है? 36. करेक्ट है? हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसने? 27 पे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे रखा है, बराबर है, बीच दोनों के बीच में रखा है. तो दोनों के बीच में रखा तो आपको आइडिया आ गया इमेज कहाँ पे आएगी. सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है. बोल तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा अपने को. बोल तो अपना आंसर कहाँ गलत होता है वो आपको पहले समझ में आएगा. तो आपकी इमेज यहाँ तो नहीं जाएगी, वो तो पॉजिटिव तो नहीं आएगी. इमेज कहाँ पे आएगी? तो मगर यही साइड में आएगी, और दोनों के बीच में है, इसका मतलब इमेज क्या होगी आपकी? मैग्नीफाइड होगी. तो इमेज कहाँ पे? यहाँ पे आएगी, है ना. थोड़ा रफ आइडिया आपको दिमाग में आ गया. रफ आइडिया आते ही क्या करना है, फिर अपना वेरीफाई करना है, फिर इमेज कैसे आ रही है. इसके यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल है, और दोनों के सेंटर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इमेज अपनी. तो रफ डायग्राम बन गया. तो आपने चेक करना है, ये 54 आया -54, तो इसका मतलब ये करेक्ट है अपना. हाइट भी क्या है? नीचे आ रही है 14, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है. तो इस तरह से आप एनालाइज भी करते हो आंसर्स को, और हर क्वेश्चन में रफ फिगर बनाओ ही बनाओ आप, है ना. ये कुछ 1 मिनट नहीं लगता है बनाने को, ये पहले फिगर बनाने का, फिर बाद में सॉल्व करने का. कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ आपने भूल जाते हैं, अपन सॉल्व करते समय प्लस या माइनस भी लिखते हैं, होता है बहुत बार, मेरे से भी गलती होती है. पर क्या करने का, रफली फिगर बनाए तो आपको समझ में आ रहा है अपना कहीं तो गलत हो रहा है. आंसर में समझो 54 आ रहा है, या अपन कभी कभी एफ में +18 लेते हैं, कुछ भी होता है कभी कभी, तो आप लोग समझ में आते हैं कि अपन कहीं तो गलती कर रहे हैं, तो ये आंसर आना नहीं चाहिए. तो फिर इसलिए क्या करें, रफ फिगर निकालना है, आपको आइडिया आ जाएगा क्लियर. व्हाट इज नाउ अंडरस्टूड नाउ? हाँ, माइनस में हो सकता है. मैग्नीफिकेशन का अब कंडीशन बताया, देखो मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है तुम्हारा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है. मैग्नीफिकेशन माइनस में कब आएगा? जब क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तुम्हारा इमेज क्या होगी तुम्हारी, देखो अभी रियल होती है, देखिए इधर. तो क्या है मैग्नीफिकेशन, क्या है यहाँ पर, ये हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है अपने यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज कितना है? 7 है, बराबर है. सॉरी, हाइट ऑफ 14 है, और ये कितना है? -14 है, और ये कितना है? मैग्नीफिकेशन कितना है तुम्हारा? 7. तो मैग्नीफिकेशन कितना है यहाँ पर? -2 आया क्या, है ना. जब मैग्नीफिकेशन जब निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी इमेज कैसी, तुम्हारी रियल है. निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, इमेज रियल है. जब मैग्नीफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव आता होगा तो इमेज क्या है तुम्हारी? वर्चुअल. हमेशा याद रखो, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या है? वर्चुअल. और मैग्नीट्यूड का बात मतलब खाली उसका साइन का छोड़ दो, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज क्या होगी तुम्हारी? मैग्नीफाइड होगी. मैग्नीट्यूड लेस देन 1 इमेज डिमिनिश. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैं साइन कुछ ले रहा नहीं यहाँ पे, सिर्फ साइन यहाँ पे तुम्हारे समझ में आया. इफ द रियल वन मैग्निफिकेशन इज माइनस, एंड इफ द वर्चुअल वन मैग्निफिकेशन इज अ पॉजिटिव. समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट वन, the same way, the distance between the objects of the two mirrors magnified virtual image produced by the curved mirrors is 15 centimeters of the focal length of the mirror must be. आपको focal length निकालना है यहाँ पे, वैसे निकालना है. distance between the objects and it's 2 times the magnified. तो क्या है distance of the object, suppose u कर लो, okay. The distance between the objects and it's 2 times the magnified virtual image. Image कैसी दी है आपकी? magnified दिया और virtual दिया, इसका मतलब magnification पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव. तो मैग्नीफिकेशन कितना दिया इसमें अभी? 2 दिया, +2, बराबर. मैग्नीफिकेशन क्या है? +2, है ना. वर्चुअल इमेज एंड कर्व मिरर्स बाय 15 सेंटीमीटर, क्या दिया यहाँ पे?
the distance between the objects and its 2 time magnified virtual image produced by the curved mirror is 15 centimeter. तो क्या आ जाए तुम्हारा यहाँ पे फाइंड द फोकल लेंथ, रफ फिगर निकालेंगे, है ना. तो क्या आ जाए पे तुम्हारा, देखो वर्चुअल इमेज आ रहा है, तो मिरर कैसा तुम्हारा, देखिए कर्व मिरर ऑफ देखो फोकल लेंथ, any doubt? Then what happened? Listen, here the distance between the objects and 2 times the magnified virtual image. देखो distance between objects and 2 times virtual image produced by the curved mirror is 15. सॉरी ऐसा नहीं दिया है, तो क्या बोला है तुमने, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ये u है, एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज. मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कहां पे आएगी, वर्चुअल इमेज आगे, है ना. वर्चुअल इमेज कहां पे अभी, यहां पे, है ना. और इमेज कैसी हो रही तुम्हारी, देखो मैग्नीफाइड हो रही. मैग्नीफाइड हो रही का इसका मतलब मिरर कौन सा है, कॉनकेव है ना. जो इमेज तुम्हारी छोटी आती थी तो इमेज क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स, ये समझना चाहिए. मैग्नीफाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, तुम्हारा इमेज जो है, इमेज तुम्हारा मिरर तुम्हारा कॉनकेव ही है ना. अभी कोई भी क्वेश्चन में देता है डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब तुम्हारा मिरर का टाइप चेंज हो गया, इनडायरेक्टली दे दिया उसने. तो ये डिस्टेंस कितना दिया तुम्हारे को, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया उसने, 15. तो ये कितना है, सपोज इसका डिस्टेंस सपोज x है, तो इसका डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 2x डबल. देखो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, इमेज क्या होगी तुम्हारी 2 टाइम्स बढ़ गई, है ना. ये डिस्टेंस कितना दिया उसने, ऑफ द कर्व मिरर इज 15 सेंटीमीटर. तो ये क्या है तुम्हारा दोनों का डिस्टेंस दिया 15 सेंटीमीटर दिया आपको, बराबर. और अभी क्या करना है आपको, वो कंडीशन में क्या करना है, आपका फोकल लेंथ निकालना है क्या. हाँ, तो आपको आइडिया आ गया. तो क्या है तुम्हारा, अभी 0 से बड़ा बोले तो 0 से तो बड़ा आएगा. तो यहाँ पे हाँ करेक्ट. अब इसमें क्या हुआ तुम्हारी, इसमें जो इमेज जो है देखो, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे दोनों का सम 15 है. देखो इधर है, दोनों का सम क्या है 15 है. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, u क्या है तुम्हारा, u निगेटिव है, माइनस u, बराबर है. हाँ, तो v क्या है आपका, पॉजिटिव है ना. v क्या है आपका, पॉजिटिव है, v है. दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 का है. मैं क्या कंसीडर करता हूं, मैं इसको सपोज मैं करता हूं x कंसीडर करता हूं, इसको 15 माइनस एक्स करना पड़ेगा, बराबर है. या तो इसको 15 करो, उसको 15 माइनस एक्स, जैसा भी आप चाहते हो ऐसा, है ना. तो मैं क्या करता हूं, लेट दिस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द x एंड दिस विल बी द 15 माइनस एक्स. तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, माइनस एक्स, और ये क्या होगा तुम्हारा 15 माइनस एक्स. अभी डाल दो फॉर्मूला में आपने, तो एफ भी क्या होगा इसका, निगेटिव आएगा, है ना. आएगा तो आंसर अपने निगेटिव आ गया. तो क्या फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. तो 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो क्या आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे ये, 15 एक्स इंटू एक्स 15 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल, है ना. माइनस एक्स कैसे आ रहा, देखो 15 माइनस एक्स, ओके माइनस एक्स हो रहा है, सॉरी. तो यहाँ पे मैंने प्लस एक्स लिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन एफ. तो क्या है 15 माइनस 2x डिवाइडिंग बाय 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो इसको इधर लेके जाएंगे अपन, 15 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, उधर लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर, चलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x डिवाइडेड बाय एफ. तो एफ को इधर लेता हूं, एफ इक्वल टू माइनस एक्स कॉमन लेता हूं, एक्स प्लस एक्स माइनस 15, एक्स माइनस ही नहीं है, तो एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2x. तो इस तरह से आ रहा है, वैल्यूज उसकी निकल रही नहीं क्या, इस तरह से आएगा. फोकल लेंथ विल बी माइनस एक्स, कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 2x, इतना ही रख दो. कौन सा, हाँ तो यहाँ पे, हाँ यहाँ से अपन निकाल सकते, वेरी गुड, अच्छा करा उसने भी दिमाग लगाया.
तो क्या है मैग्नीफिकेशन, क्या है टू टाइम्स दिया, तो मैग्नीफिकेशन यानी क्या है तुम्हारा v बाय यू माइनस वी बाय यू, ये आपने को इक्वेशन दिया उसने, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस 15/x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया 2, करेक्ट है। कौन सा -15 माइनस एक्स, हाँ तो क्या है देखो, सॉरी ये ब्रैकेट है, माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू इक्वल टू मैग्नीफिकेशन क्या है 2। तो फिर क्या होगा तुम्हारा, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना है 15 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो 15 इक्वल टू 3x, तो x कितना हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 5 तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे को, इधर भी कर दो, हाँ x इक्वल टू 5 यहाँ पे भी डाल दो, है ना। तो x इक्वल टू 5 कितना है तुम्हारा, f इक्वल टू -5 है ना, क्या 5 है, 5 है, तो -5 5 माइनस 15 डिवाइडिंग बाय 15 माइनस 10, तो ये कितना आ रहा है -5 इंटू -10 डिवाइडिंग बाय 5, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा आपका 10, माइनस आना चाहिए था ना, 10 माइनस आना चाहिए, हाँ तो 5 -25 हो रहा है, सॉरी नहीं -10 और ये -50, हाँ +50 हो रहा है ना, 50 डिवाइडिंग बाय, नहीं आंसर आना चाहिए क्या अपने को, हाँ तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे, तो 50, तो मैग्नीट्यूड क्या लेना है आपको -50, ये साइड में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे, तो आप लोग को ये साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में एफ क्या लेना चाहिए आपको, -f लेना चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्या एफ लिया, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है 1/f इक्वल्स टू 50, तो माइनस कितना आएगा तुम्हारा, एफ इक्वल्स टू -50, फोकल लेंथ क्या था -50 आएगा उसका, सॉरी -10 फोकल लेंथ कितना है -10, है ना, तो ये साइड में फोकल लेंथ आएगा, समझे। देखिए नेक्स्ट वाला, डेंटिस्ट वांट्स स्मॉल मिरर्स व्हेन 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द टूथ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है आपको, यू दिया है, विल बी प्रोड्यूसेस 3x अपराइट इमेज, अपराइट 3x बड़ी आ रही है, इसका मतलब मिरर कौन सा तुम्हारा कॉनकेव है ना। व्हाट काइंड ऑफ द मिरर मस्ट बी यूज, तो ये आंसर आ गया आपका कॉनकेव मिरर, है ना, व्हाट काइंड का मिरर यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया, एंड यूज व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर विल बी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी क्या होगी, फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ निकालने के बाद में क्या निकालना है आपको, उसका डबल कर देना है, सॉरी हाँ डबल कर देना तो रेडियस मिल जाएगा, कर सकते हो, बताना है, हाँ बताना है क्या, द नेक्स्ट वन देखो, you look at yourself at shiny 8.8 centimeter diameters of Christmas tree ball. Christmas tree ball यानी ऐसा होता है, शाइनी होता है ना, इसका मतलब कैसा, कौन सा मिरर बन गया तुम्हारा, ये कॉन्वेक्स बन गया, इसमें आप छोटे छोटे दिखोगे आप बॉल में, है ना। तो इनडायरेक्टली दिया है, इफ द योर फेस इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉल, ये यू दिया है, यू कितना दिया आपको -25 सेंटीमीटर, और ये कौन सा इनडायरेक्टली दिया आपको, यू लुक एट योर शाइनिंग, बोलते हाइट ऑफ इमेज दिया है, कितना दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया 8.8, सॉरी डायमीटर दिया ना उसका, रेडियस दिया है, हाँ इनडायरेक्टली दिया डायमीटर, डायमीटर कितना दिया उसका 8.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया उसका 4.4, तो फोकल लेंथ कितना है 2.2, और इसकी मिरर फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, बराबर है। इसकी if your face is at what the surface where you will the image, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, फिर रियल या वर्चुअल पूछना है। अब ये कौन से टाइप का मिरर, इसमें इमेज कैसी आएंगी, हमेशा वर्चुअली आएगी, अपराइट आएगी, है ना, तो फिर बाद में फॉर्मूले में डाल देना है, निकाल सकते हो। देखिए तो उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, अ कॉन्केव मिरर हैविंग द फोकल लेंथ f, देखो अभी करेंगे अपन, कॉन्केव मिरर हैविंग द फोकल लेंथ, ओके समझ में आया कि आपको बताना है, ओके ओके याद मत करो आंसर्स, समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर सॉल्व कर देंगे, बताओगे फिर से, देखिए ओके आपको डाउट है तो फिर मैं अकेले में पूछता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हाँ सिंपल डाटा देता हूँ मैं आपको, इसको देखो, कॉन्केव मिरर हैविंग द फोकल लेंथ f, मिरर कौन सा दिया तुम्हारा, कॉन्केव दिया है, तो f क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, ओके f दिया है, एंड प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स, तो इमेज कैसी आ रही है आपकी
n टाइम्स n मैग्निफिकेशन क्या है उसका, कॉन्क्यूमेंट का मैग्निफिकेशन क्या होता है, n, है ना. तो n टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इफ द इमेज इज रियल, रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया उसका, -n, बराबर है. एंड देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मिरर इज, तो क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यू निकालना है, बराबर. हाँ, तो ये आपको दिया है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है तुम्हारा, -v/-v/u. तो यहाँ पे क्या है v, और इसका ये रिलेशन आएगा तुम्हारा v इक्वल्स टू nu. v इक्वल्स टू कितना हो गया, nu. फॉर्मूले में डाल दो अपने, मिरर फॉर्मूले में क्या है, 1/u प्लस 1/f, सॉरी 1/v इक्वल्स टू 1/f. तो u क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है. v के जगह क्या करना है आपको, 1/nu डालना है. ओके, हाँ 1/f. समझ में आ रहा है, इसको बोल रहा हूं मैं. अभी क्या करना है, इसमें से u कॉमन निकाल के, u कॉमन लेता हूं, इसमें एलसीएम क्या है, nu एलसीएम है, तो -u से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई क्या होगा तुम्हारा, -n प्लस 1 इक्वल टू 1/f, बराबर. इसका फोकल लेंथ कौन सा है तुम्हारा, माइनस ही होगा, है ना, निगेटिव साइड में होगा. तो आपको क्या निकालना है, u निकालना है आपको. तो -n प्लस 1 इक्वल टू nu -nu/f करेंगे, चलेगा. हाँ, तो अभी मैं f को इधर लेता हूँ, f इधर लेते वक्त क्या, -nu डिवाइडिंग बाय, डिवीजन में आएगा तुम्हारा n प्लस -n+1. अपने को सॉरी, अपने को u निकालना है ना, तो इसको इधर f को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, f को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा. और n को फिर डिवाइड कर देता हूँ, तो n को क्या कर दिया, f इन ब्रैकेट -n+1 डिवाइडिंग बाय -n इक्वल्स टू u, ये रिलेशन है. तो 1 -n, u कितना है तुम्हारा, ऑप्शन नहीं है ना, 1 -n, ये डिवीजन में -n है ना, एक मिनट इधर गलत हुआ, थर्ड पॉइंट ये 1/-u डिवाइडेड 1/nu इक्वल्स टू 1/-1/f. तो यहाँ पे u कॉमन, nu कॉमन, देन -n प्लस 1 इक्वल्स टू, बराबर है ना, माइनस f माइनस है, तो जी माइनस है ना रे, nu, तो यहाँ पे -n, हाँ यहाँ पे f. ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस नहीं होता है वो, देखो. तो यहाँ तक समझ में आया क्या, फिर से बता दूं मैं आपको, देखो देखो यहाँ से फिर से करेंगे, अरे हाँ देखो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कितना दिया है आपको, रीडू करूँ क्या, हो जाता हो अंडू, और अंडू नहीं आता शायद. ओके, जस्ट नहीं आ रहा है ना, ओके हाँ, ओके. Simply just you substitute the values, okay, that in relations you will find the answer. If you are unable to get, again I will discuss, okay. Here some basic numerical examples, and here the homework is given for you. You saw that homework, and if you are unable to solve, we'll discuss. Thanks for today's topic. You saw these questions, okay.